कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आपके ट्रस्ट ने हर दिशा में अच्छा करने का लगातार प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि अमरेली में बनने जा रहा कैंसर हॉस्पिटल सेवा भावना की एक और मिसाल बनेगा। इससे अमरेली समेत सौराष्ट्र के बहुत बड़े क्षेत्र को फायदा होगा। साथियों, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज किसी भी व्यक्ति और परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। सरकार का प्रयास है कि कैंसर के उपचार में किसी भी मरीज को मुश्किलें न आए। इसी सोच के साथ पिछले 9 साल में देश में करीब 30 नए कैंसर अस्पताल विकसित किए गए हैं। 10 नए कैंसर अस्पताल पर अभी काम चल रहा है। साथियों, कैंसर के इलाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि कैंसर का सही समय पर पता चल जाए। अक्सर हमारे गांव के लोगों को जब तक कैंसर का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, शरीर में काफी फैल चुका होता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही केंद्र सरकार ने गांवों के स्तर पर 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों को शुरू में ही पकड़ने पर जोर दिया जा रहा है। जब कैंसर का पहले पता चल जाता है तो उसके इलाज में डॉक्टरों को भी बहुत मदद मिलती है। केंद्र सरकार के इस प्रयास से महिलाओं को भी बहुत फायदा हुआ है। सर्वाइकल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, इसकी शुरुआती जांच में आयुष्मान आरोग्य मंदिर अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, पिछले 20 वर्षों में गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज गुजरात भारत का बड़ा मेडिकल हब बन रहा है। 2002 तक गुजरात में सिर्फ 11 मेडिकल कॉलेज थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 40 हो गई है। Republic TV getting you the latest from the Ram Mandir. This is the ground zero. This is the epicenter, and we are going to show you all the latest and the biggest coverage and all the exclusives only on Republic TV viewers. Right now, we have guests coming in from all across, not just the country but the world. I have with me one such gentleman who is from Boston right now. Sir, your good name and how does it feel to be here? I am Pramit Makode. The atmosphere is really bhaktimay. It is electrifying and amazing atmosphere. It is much more than what we have expected. We all have expected something electrifying, but it is truly electrifying experience. It is a wonderful experience, very spiritual experience, and I will request not only my family, but my extended family, my friends from all over the world to visit India and to see the new awakening, the new spiritual awakening of India. Managed to, go around Ayodhya and see how things are like and what has changed? Yes. Yesterday we have spent good amount of time, and definitely it is very clean, nice, and most of the worth visiting places have decorated in such a spiritual manner that you definitely feel very amazed by the experience and very spiritual by your experience. Waiting for the darshan? Yes, we did the old Ram Lala darshan yesterday, but now we all are waiting for the tomorrow's ceremony and the darshan of the new mandir.
great, sir. Of course, you will be privileged to, of course, to actually witness and see the new Ram Lala idol that is now ready. Also, we are joined by our guest from on a broadcast, Swami Vigyanand जी. आप अगर मैं सुन पा रहे हैं तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भक्तिमय माहौल है. हमने देखा है कि कितनी ज्यादा राजनीति हुई है और लास्ट डे तक राजनीति होती जा रही है. Yes, sir. There has been politics at its peak. Ever since the verdict has been given, all this while the construction was taking place, and now when the date was announced, earlier कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख बता दी, उसमें भी विरोध हो रहा है. मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहां बना दिया तो कह रहे मंदिर वहां नहीं बनाया है, और सनातन के खिलाफ किस तरह के बयानात आते रहते. We see constantly there is unabated abuse against Sanatan and Ram Mandir. क्या लगता है आपको इसके किस तरह से असर पड़ सकते हैं? क्योंकि हमें अयोध्या में तो जहां पे मैं हूं पिछले कुछ दिनों से, I can see no influence of those India Alliance leaders or anybody who is actually trying to tell people that what is happening is anything wrong. सर आप बताइए क्या कहेंगे आप उन लोगों को, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? देखो रक्षिता जी क्या है, रक्षिता जी सिंस 1982 ऑनवर्ड राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू हुआ 1983 ऑनवर्ड, तब से ही हमारे लोगों ने, ये जो अपोजिशन के लोग हैं, एंटी हिंदू लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, सब विरोध कर रहे हैं. लेकिन हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि ये जितना विरोध हमारा करेंगे हमारा काम उतना ही आगे बढ़ेगा. देखिए हिंदू मूवमेंट का जगरनेट ही कंटिन्यूअसली स्पीड पकड़ते जा रहा है, और जो इसका विरोध करते जा रहे हैं वो हाशिए पर चले गए हैं. दे हैव बिकम फ्रिंज. सो हम तो कहते हैं उनका विरोध करो, अच्छी बात है, हमारा विरोध करोगे हमें और ताकत आएगा, हमें और बल मिलेगा, एंड विल गेट स्ट्रॉन्गर. हमारा कमिटमेंट और बढ़ता है. आप देख रहे हैं कि वो लोग फ्रिंज होते जा रहे हैं, दे आर, वो अपने आप को सुसाइडल मोड में डाले हुए. तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं, वो हमारा विरोध करें, आगे बढ़ते जाएंगे. हिंदू मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है. और आप सब देख रहे हैं अयोध्या में तो जरा सा भी असर नहीं पड़ता है. देखिए अयोध्या तो पूरा राममय है, आज नहीं शुरू से ये अयोध्या हर चीज का विटनेस किया है. तो अयोध्या में तो आप देख रहे हैं, मैं भी अयोध्या में हूं, सब जगह उत्साह जोरदार है. और पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस जो भी विरोध कर रहे थे, हमें तो, मैं उनके विरोध का स्वागत करता हूं. जितना विरोध करेंगे हमारे लिए अच्छा है. ये हिंदुओं के सामने एक्सपोज होंगे, हिंदू उनको किक आउट करके और बाहर कर देगा. बिल्कुल. और जैसे कि इस तरह से हमने देखा है कि तमाम लोग जो है हुजूम उमड़ पड़ा है यहाँ पर, हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर हो, राम की पैड़ी हो, हमारे तमाम जो पूरा नेटवर्क है रिपोर्टर्स का, वो लगातार तमाम जगहों से जो है हमको दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कितनी भीड़ और कितनी ज़्यादा उत्साह है लोगों में. लेकिन जैसे कि बहुत मैं एक बार फिर से राजनीति पे आऊँ, किस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर की जगह अस्पताल हो सकता था, स्कूल हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, कि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. क्या मंदिर जरूरी है? क्या मंदिर जरूरी है? लग रहा है कि कुछ लोगों को शर्म आ रही है मंदिर से, पता नहीं क्यों. लेकिन यहाँ पर पूरे दुनिया से लोग, आपको मालूम होगा कि कम से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं कल. देखो रक्षिता, बात क्या है कि जो लोग अस्पताल की बात कर रहे हैं, भारत 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है. यहाँ भारत में इतनी जमीन है, वहाँ लाखों मेडिकल कॉलेज, हजारों मेडिकल कंपाउंड बना सकते हैं. जिनको बनाना है और जगह बनाए, राम जन्मभूमि पर ही क्यों बनाए. कल कोई कह दे कि राजीव गांधी का फाउंडेशन का ऑफिस है, वहां हॉस्पिटल बना दो. कल कोई बोल देंगे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की समाधि बनाने की क्या जरूरत है, वहां पर मेडिकल कॉलेज बना दो, हॉस्पिटल बना दो. तो उसमें कोई इनको रोक नहीं सकता. लेकिन हम इन सब चीजों को मानते नहीं है. जिसको जहां जिस चीज को बनना है वहीं पर बनेगा. जहां मंदिर है वहां मंदिर बनेगा, जो जगह हॉस्पिटल के लिए वहां हॉस्पिटल बनेगा. और लोग तो आ रहे हैं 55-60 देश के, तो लोग 55-60 देश के लोग आ रहे हैं अयोध्या में, सारी दुनिया से. हमने इतने ही लोगों को इनवाइट किया क्योंकि अयोध्या में 22 के लिए उतना स्पेस नहीं था, इसलिए हमने लिमिटेड बुलाया है. उसके बाद हमने कहा 23 ऑनवर्ड सब रेगुलरली आइए, और सब लोग आ रहे हैं बड़े उत्साह से. और भारत से बाहर भी बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े सेलिब्रेशन, उत्साह जोरदार है अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ए सिंगल. कुछ तो ऐसे जगह हैं आप सरप्राइज करेंगे, वहां भी हिंदू पहुंच गए, वहां भी बड़े उत्साह से आयोजन कर रहा है. यस जी बिल्कुल सर. ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग कितना
यहाँ पर एक्साइटमेंट है वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मैं आप पर आऊँगी, लेकिन यहाँ पर तमाम साधु संत भी हैं जो एकत्रित हैं, साध्वी जी भी हैं। बताइए मैम, कैसा लग रहा है? जय श्री राम। और आप जी का नाम? जी? आप जी का नाम? सॉरी असमन। आपका नाम? रक्षिता। रक्षिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप ये इस जन्मभूमि में सेवा कर रही हैं। मेरे बाल्यकाल का संकल्प था कि जब अयोध्या जी में श्री भव्य मंदिर बनेगा श्री राम जी का, तो मैं तभी अयोध्या में जाऊंगी। आज मैं प्रथम बार करते हुए अपने संकल्प की पूर्ति के लिए आई हूँ, राम जी को प्रणाम करने। अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। ये शुभ दिन बड़ी मुश्किल से हम संतों के, सभी भारतवासियों के, संपूर्ण विश्व के लिए बड़ी मुश्किल से आया है। मैं सबको बधाई देती हूँ। करनाल मुक्ता भारती विश्व हिंदू परिषद, देश में आज छोटी दिवाली है और कल को बड़ी दिवाली है। सभी लोग घरों में दीप जलाएं, हर्षोल्लास से अपने भगवान के आगमन पर खुशियां मनाएं। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति और हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे महान है, सबका कल्याण चाहने वाला है, सर्वे भवन्तु सुखिना कहने वाला है और सभी का कल्याण मंगल की कामना करने वाला है। शाम को ही मैं सरयू किनारे गई तो वहां पर मेरे को अनुभव हुआ कि राम जी जल में जो है, भगवान ने वहीं से साकेत धाम में प्रवेश किया था। तो एक आकाश में मुझे भव्य दिव्य रोशनी, दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ और मैं इस भाव में थी कि मेरे प्रभु कौन से रास्ते आएंगे, तो उसी रास्ते से प्रभु का आगमन हो रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में श्री राम जन्मभूमि पर मेरे भगवान श्री राम साक्षात दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ये बड़ा महोत्सव है। जय श्री राम। नाम एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या धाम की। You can see, of course, the excitement is only peaking. विज्ञानंद जी, स्वामी जी, अगर हमको सुन सकते हैं कि जिस तरह से आपको सुनाई दे रहा होगा, जयकारे जो है लगातार यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। लोगों का हुजूम भी देखिए, एक बार हम दर्शकों को दिखा दें किस तरह से यहाँ पर लोग एक झलक पाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अभी पब्लिक के लिए तो नहीं खुला है, लेकिन किस तरह से लोग कहाँ से आए आप? जय जय श्री राम, जय श्री राम। कोटा राजस्थान से। Of course, you can see. राम जन्मभूमि का एक ऐसा नजारा है जो हम देखने के लिए उत्साहित थे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सनातन की परम जीत है। ये भूमि सनातन की है। राम जी महाराज डेरे से निकलकर अपने महल के अंदर विराजित होने जा रहे हैं। ये एक अलौकिक और बहुत ही सुंदर दृश्य प्रतीत हो रहा है। मानो ये अयोध्या नहीं, ये स्वर्ग जैसी प्रतीत हो रही है नगरी। पूरे नगर के अंदर फूलों से सुंदर रूप से सजावट की गई है। भगवान राम जी स्वामी जी, मैं अगर आपने सुना यहाँ पर, और अगर पता नहीं अगर आपके सामने स्क्रीन है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हुजूम उड़ा हुआ है ना, जो उमड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सेलिब्रिटी आता है, बड़ा क्रिकेटर आता है, सुपरस्टार आता है, बड़ा नेता आता है। इस तरह से हम क्राउड देखते हैं। वी सी द क्राउड्स गैदरिंग व्हेन देयर इज सम हाई profile celebrity coming in, but the way this road is being filled up with devotees, it is for Ram Lalla. He's the biggest celebrity, he's the biggest star. We've seen this is the biggest hotspot for tourists. Also we are seeing that the footfall is going to increase. तो स्वामी जी, अगर आप सुन सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सबसे बड़े जो हस्ती इस वक्त हैं वो राम लला हैं, और ये बहुत लोगों को ये उत्तर देता है जो भी लोग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी। जो हुजूम है यहाँ पर, सुपरस्टार से भी बड़े स्टार रामलला है इस वक्त। देखो, रामलला सबसे बड़े हैं। ये जितने भी और बाकी सभी बड़े लोग हैं उनसे सब छोटे हैं। सबसे बड़े रामलला है। रामलला ही हिंदू सिविलाइजेशन के सेंटर में और सबको गैल्वनाइज करते हैं। सतयुग में रामलला ने हमारे देश का उद्धार किया था, राक्षसों से मुक्त करवाया था, अत्याचार से मुक्त करवाया था। कलयुग में वर्तमान समय में भगवान रामलला के नाम से ये जो आंदोलन चला, पूरे राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, हिंदू सिविलाइजेशन का रिजुविनेशन हो रहा है, हिंदू दुनिया में खड़ा हो रहा है, ये भगवान राम का ही प्रताप है। और पूरे देश में, समाज में उत्साह है। और अयोध्या तो सेंटर ऑफ एक्टिविटी। यहाँ तो आप सब देख रहे हैं, रोड पर हर जगह उत्साह का ही उत्साह माहौल है, अनप्रेसिडेंटेड है, और हम लोग सब बड़े उत्साहित है, खुश भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्वामी जी जुड़ने के लिए। और ऑफ कोर्स हम कोशिश करेंगे आपसे फिर से बात करें जब हम देखेंगे आखिरी में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो जो एक सुंदर एक यहाँ पर माहौल होगा वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर स्वामी विवेकानंद जी। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स, आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम द राम टेम्पल राइट नाउ एंड ऑफ कोर्स डेवोटीज, सेंट्स, एवरीबडी इज क्यूइंग अप। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं अयोध्या में, नगरी में, ये जो राममय है, आप किस तरह से जुड़े रहे हैं यहाँ पर? यहाँ भगवान राम की जो इतने दिन तक प्रशंसा में पड़ी थी, आवाज़ उनकी भगवान ने सुन ली है कि जो यानी मोदी जी ने और योगी जी ने जो मंदिर का निर्माण करवाया है, ऐसे हम लोगों को बहुत बड़ी प्रशंसा हुई है। और हम लोगों ने बहुत, आज 18 तारीख से हम लोग यहाँ पर पड़े हैं, आए हैं भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, सब लोग शामिल हुए आकर के, और ये बहुत बड़ी हम लोगों को खुशी हुई है मंदिर बना हुआ। You can see people are very excited and we'll get you more updates from all the vantage points. VIP movement is right now happening and of course heavy security deployment, security has been beefed up.